and I hope you all are good at your side with your family also. Now, students, in the last session, सर we वॉइस have ब्रेक हो रही started है, CSS. Yes, वॉइस ब्रेक हो रहा है आपको। voice break हो रहा है. Just wait 1 minute. यस I will check some connection at my side. Now, is it clear? Hello. यस सर Yes, sir. क्लियर। Okay. So, student, in the last session, what we have started? In the last session, we have started CSS, right? So you can see, students, this is our CSS folder, right? And here we have some notes file and some HTML and CSS file also. Now this CSS folder I'm going to open in my VS Code editor. So for that, what we need to do? For that, we need to go to the browser first. Sorry, not browser, in the URL, write cmd and press enter. So when you press enter, that CSS folder and its path will get open in our terminal. Now I want to open this path in my VS Code editor. So for that, what we need to write? We need to write here code, then give the space, write dot and press enter. So this will open our CSS folder with its path in VS Code editor. So students, from onward this, you have to use this method to open your folder in VS Code editor. So students, you can see these are the some topics which we have covered in the last session. So student, in the last session we have started CSS. We saw the introduction of CSS. What is CSS? What types of CSS, right? Then how many ways we can use CSS. Then we saw selectors available in our CSS. So students, have you practiced it at your side? Whatever the topics we saw in the last session, have you practiced it? Swapnil, Nikhil Pawar. यस सर। Okay. And do you have any query in it or any doubt? नो सर, नो सर। No. Okay, good. What about Swapnil, Tikole and Nikhil Pawar? No, sir. Okay, good. So you have to practice it very well at your side, everyone. Okay. Until and unless you practice it, there will be no meaning of just watching the video. Okay. Because सुनिए टेक्निकल चीजें हैं, इसे आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेंगी. Now in CSS we are going to learn too many properties. CSS में हम बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं. तो वो हेलो सर। प्रॉपर्टीज. हेलो। हाँ, यस. हाँ सर, कल कल मैं एब्सेंट था, इस वजह से सीएसएस का कुछ मालूम नहीं है मेरे को। तो क्या आप ओके. थोड़ा सा रिपीट कर देंगे? मैं कल का वीडियो फिर से देख दूंगा। नहीं, एक काम करना ना, आपको वो वीडियो एक बार फिर से देखना है, क्योंकि वो पूरा चीजें रिपीट करना बोले तो करने अगर हम जाएंगे तो आज का सेशन पूरा चला जाएगा. अच्छा। राइट. आपको वो वीडियो देखना है स्टूडेंट्स. अब आपके लिए ठीक है, अगर ये ऑफलाइन सेशन होता सो आई विल रिपीट इट. अगर वो ऑफलाइन सेशन हो तो मैं वो रिपीट भी कर सकता था. बट अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग आपको देखना है. अगर रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी अगर आपको नहीं समझती है, so you can ask me, I will explain you. Fine. ओके सर, ओके। बट स्टूडेंट्स, ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपका कुछ भी मिस होता है तो आपको वो रिकॉर्डिंग देखनी ही है. ओके. कितना भी अगर आपका टाइम सपोज आपको नहीं मिले, टाइम निकालो और वो देखो, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं. हम बस 1 आवर का सेशन कंप्लीट करते हैं यहाँ. क्योंकि आई नो यू आर सम ऑफ यू आर वर्किंग ऑन जॉब and you cannot spend more time here. You have to take a rest, you have to complete your another task apart from your job. So that's why we are just doing a 1 hour class here, but in that 1 hour class you have to complete it. आपको वो क्या करना है, वो सेशन कंप्लीट करना है. वीडियोस है आपके पास. मैंने आपको पहले कहा है स्टूडेंट्स, इफ यू वांट, इफ यू फील दैट वीडियोस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, और इफ इट्स आपको लगता है कि वो वीडियो आपके लिए फिलहाल समझ में नहीं आया, फ्यूचर में आपको काम लगेगा, तो वो डाउनलोड करके रखना है. सभी वीडियो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ समझ में वो हम डाउनलोड नहीं करेंगे. बट आपको लगता है कि नहीं, अरे ये मुझे फ्यूचर में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, सो डाउनलोड करके रख दो. क्योंकि वो ये जो हमारे चैट बॉक्स में आपको वीडियोस दिखते हैं वो बस 1 मंथ के लिए होते हैं, 30 डेज के लिए होते हैं. आफ्टर 30 डेज इट विल रिमूव ऑटोमेटिकली.
और जैसे वो वीडियो रिमूव हो गया, सो आई कांट हेल्प यू, क्योंकि वो मेरे पास भी स्टोरेज नहीं होता। ओके, so students, now you can see in our css we are going to learn too many things, right? too many properties, हम css में बस properties पढ़ने वाले हैं। so students, now today we are going to start some topics, some more topics. So what are it? Let's see. So students, now these are the some topics which we have covered in the last session. So students, now I'm going to ask you some questions. Okay, ठीक है। स्वप्निल आप absent थे, so आपने वीडियो नहीं देखा, इसलिए आपके लिए थोड़ी सी आज छूट है। बट अगले फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम एवरीवन, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम अगर आप absent भी होते हो तो आपको वो पढ़कर आना है, राइट? सो एक काम करो, टेक अ 5 मिनट्स। ओके, आपको क्या करना है, 5 मिनट लेना है। और कल क्या क्या हमने सीएसएस में देखा, मैंने नोट शेयर किए हैं, आपको पढ़ना है। ओके, 5 मिनट के अंदर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, सो यू हैव टू बी इन अ पोजिशन टू आंसर मी। सो एक बार रिवीजन करना है। ओके, सो टेक अ 5 मिनट्स।
Hello, now done everyone? Have you read the given points and given notes? Hello students. Okay, now फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, चलो मैं एक एक स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ. सिंपल एंड स्मॉल क्वेश्चन है स्टूडेंट. आपको अब फ्रॉम ऑनवर्ड दिस, ओके, इसके बाद आपको आप जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है, क्योंकि मेरे लिए नहीं, आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको वो प्रिपेयर होके रहना है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप आंसर दे पाओगे वो आपके लिए बेटर रहेगा. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन किसे पूछना है? सिंपल, स्वप्निल मिश्रा. ओके, so just tell me what is CSS. Swapnil Mishra, just tell me what is CSS. Hello, am I audible to you, students? Yes, sir. Okay, so hello Swapnil Mishra, can you tell me what is CSS? CSS used to design web page, Hmm. and CSS stand for cascading style sheet, Hmm. and latest version of CSS in CSS 3. ओके, करेक्ट. सो स्टूडेंट्स, नाउ आपने देखा होगा स्वप्निल आंसर दिया वो करेक्ट है, बट थोड़ा आपको ऐसे लगता है, मुझे क्या लगता है कि स्टूडेंट स्वप्निल आपने आंसर दिया वो करेक्ट है, बट थोड़ा कॉन्फिडेंटली देना है, राइट? सो थोड़ा कॉन्फिडेंटली आंसर देना है. व्हाट इज सीएसएस? इट इज यूज्ड टू डिजाइन वेब पेज और वेबसाइट. CSS stands for cascading style sheet, and the latest version of CSS is what? CSS 3. With the help of CSS we can make our website good looking, attractive and responsive also. So अगर आप ऐसे आंसर दोगे स्टूडेंट्स, सो इट विल बी अ मोर कॉन्फिडेंट. सो आपका इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, जो इंटरेक्शन होगा वो ज़्यादा बेटर होगा. ओके, नाउ निखिल पवार, what are the types of CSS, or how many ways we can use CSS in with HTML file? Hello Nikhil, am I audible to you? Hello, sir. I am audible. Yes, you are audible. Sir, there are three types of CSS. The first one is internal CSS. First one is inline CSS. Second one is internal CSS, and third one is a external CSS. So, in inline CSS, we can write the CSS in a period tag in HTML. In internal CSS, we can write code in style tag, and in external CSS, we want to import all CSS file into our HTML file by Okay, using good. link Correct. tag. Correct, Nikhil. So students, you can see, you hear, right? Nikhil give us an answer. So correct. So first of all, there are three types of CSS: inline CSS, internal CSS, and external CSS. So in inline CSS, we write CSS properties and value in a starting tag, right? हम क्या करते हैं, CSS की प्रॉपर्टीज और वैल्यू स्टार्टिंग टैग के अंदर यूज करते हैं विद इन द स्टाइल एट्रीब्यूट. आफ्टर that internal CSS, internal means inside a external page. So for that we use style tag, and in that we write CSS code. And what is external CSS? So if you want to perform external CSS, for that we create a separate CSS file, and that CSS file we import in HTML file with the help of link tag. Correct, Nikhil? Now Siddesh, tell me, what are the selectors? How many types of selectors are available in CSS? How many types of selectors are there? Sir, 5 types of selector in CSS. Okay. Element selectors, group selector, ID selector, class selector, and universal selector. Correct. So students, here we have 5 types of selector. Not in a CSS, we do not have only in a last session I just taught you only 5 types of selector. But in CSS we have again 2 more types of selector, like pseudo selectors, attribute selectors also there. Okay, but we are going to learn in after some sessions. Okay, हमारे CSS में अभी तो फिलहाल मैंने आपको 5 टाइप के सिलेक्टर्स बताए, जैसे सिद्धेश ने बताया, एंड इट इज करेक्ट. बट और भी मल्टीपल टाइप्स के सिलेक्टर, जैसे सुडो सिलेक्टर्स है, देन
एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स है, ये जो सिलेक्टर्स है मैं आपको ये बाद में पढ़ाऊंगा, जब हमारा 2-3 आप ज़्यादा फैमिलियर हो जाओगे हमारे सी के साथ तब, क्योंकि कुछ चीज़ें उसी टाइम पे पढ़ना ज़रूरी है, राइट? सो नाउ धीरज, suppose we have what is the difference between id selector and class selector? हमारे पास तो id selector है, class selector, so what is the difference between id selector and class selector? ID is unique, so it used to specific element. Okay, and class? If you want to apply the CSS property to the multiple element, then we use the class. Correct. Yes. So student, why now the what are the answer given by the Dheeraj? It's a correct. So ID means what? ID specify the uniqueness. So suppose if you have a multiple elements, and among the multiple elements you want to apply some bunch of properties to a specific or a single element. So for that we use ID selector, which is denoted by the what? Hash. And if you want to specify some common properties to specific element, जैसे हमारे पास कुछ multiple elements है, उसमें से 4-5 element को हमें same properties apply करने, so in that case we use class selector. Okay, so these are the things which we saw. Okay, now who is going to tell me what is the use of universal selector? Right? Who is going to tell me what is It the will use of? apply. Yes. It will apply all the property to all the element. Yes. So students, what is the use of universal selector? So if you want to apply some properties to the all elements available in your web page or HTML page, if you want to apply some CSS property to the all element available in our web page, for that we use universal selector, which is denoted by the asterisk. So ये important है students, you must be aware about it. Now today we are going to learn some more properties and values. Okay, so till this clear, you can see these are the some topics which we have seen. So CSS के लिए हमें अगर हमें internal या फिर external use करना है, so first of all syntax हमें क्या लिखना पड़ेगा? उसका syntax है selectors. अब selector का नाम कुछ भी हो सकता है, ID हो सकता है, class हो सकता है, then properties and values. Now students, let's look at here. Today is what? Today is 8/2/23. Now we are going to learn some properties here. So आज हम कुछ properties पढ़ेंगे. So let's some text properties. Okay, कुछ हम text properties पढ़ेंगे. So first of all, what I'm going to do, text भी हम पढ़ सकते हैं या फिर मैं क्या करता हूँ students? Okay, let's see text property में आपको कुछ बता देता हूँ. So first of all, I just create here one HTML file, text prop.html. Bring the skeleton structure of HTML here. Okay, just wait over 1 minute. Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So students, now look at here. Suppose if you want to insert a paragraph in HTML. So Swapnil Tikole, can you tell me how will you insert a paragraph in your HTML file? Suppose if you want to insert a paragraph in your HTML page, how will you do that? How can you insert a paragraph? Let pair tag P tag, correct. Yes, correct. So students, if you want to insert a paragraph, for that we have a P tag. So I use here P, then I just insert a lorem ipsum. So ये हमें क्या है students, ये हमारा P tag है. Suppose मुझे क्या करना है, इसे कुछ अब हम यहाँ internal CSS पढ़ेंगे. Internal मतलब हमारे वेब पेज के अंदर कोडिंग करेंगे, internal. So I write here style tag, and style tag is a pair tag, correct? So फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसे हम क्लास यूज करेंगे, इसे क्लास देना है तो I use class attribute.
एंड क्लास नेम, मैं क्लास नेम यहाँ देता हूँ CLS1। ऐसे आप कुछ भी नाम दे सकते हो बट वो अल्फा न्यूमेरिक होनी चाहिए, करेक्ट। सो इसको मैं यहाँ के कैसे एक्सेस करूंगा, इस P को हमने क्या अप्लाई किया है, क्लास, दैट इज क्या नाम है, CLS1। इसे मुझे अगर CSS के अंदर यूज करना है सो वी यूज डॉट एंड क्लास नेम CLS1, ओके, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। तो ये हो गया सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर इसके लिए। तो मुझे क्या करना है, इस पैराग्राफ को बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर होता है, लेट्स चेक। मैं सेव करता हूं, आई जस्ट एग्जीक्यूट, कॉपी पाथ, गो टू योर ब्राउजर एंड एग्जीक्यूट इट, ओके। स्टूडेंट कुछ सेशंस हम इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सो यू कैन सी वी आर गेटिंग इट्स पैराग्राफ। बाय डिफॉल्ट आप ब्राउजर पे कुछ भी डिस्प्ले करते हो तो उसका कलर क्या होता है, ब्लैक। बाय डिफॉल्ट एवरी एलिमेंट हैज अ ब्लैक कलर। नाउ इस टेक्स्ट का मुझे कलर अलग देना है, चेंज करना है कलर नेम। सो क्या प्रॉपर्टी होगी, सिंपल, color is a one property and you can use values, okay। So suppose I want to give I want to apply some color that is blue, so save it। आपको ये डॉट इंडिकेट क्या करता है, आपकी फाइल सेव नहीं है। सो अगर आप सेव नहीं करते और ब्राउजर पे जाते हो और इसे रिफ्रेश करके देखो, अप्लाई होता ही नहीं है। सो यू हैव टू सेव योर फाइल, ओके। नाउ गो टू योर ब्राउजर एंड रिफ्रेश। आप देख सकते हो मेरे टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ है, राइट एवरीवन, मेरे पैराग्राफ का कलर ब्लू हो चुका है। अगेन आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इस टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है। सो वी हैव वन मोर प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर। सो आपको जो कलर देना है वो दे सकते हो, मैं देता हूं इसे एक्वा मरीन। अब क्या होगा, ये बस इसी पैराग्राफ के लिए बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमने ये क्लास बनाया है इसी एलिमेंट के लिए। तो ये बैकग्राउंड कलर बस इसी को अप्लाई होगा। सेव, गो टू योर ब्राउजर, राइट, इसी पैराग्राफ के लिए बैकग्राउंड कलर आ चुका है। नाउ सो स्टूडेंट्स, नाउ एक सिंपल क्वेश्चन है मेरा, व्हाई दिस पैराग्राफ इज टेकिंग फुल विड्थ। ये पैराग्राफ पूरी की पूरी विड्थ क्यों ले रहा है और बैकग्राउंड भी कलर पूरा का पूरा, यस, because it's a block element. yes student, because paragraph is a block element and block element is what, which is always start on new line because it takes the full width of your screen. That's why it is taking full width of your screen and it is okay, take start on a new line if you are going to draw one more paragraph. सपोज अब फिर से मैं यहाँ पैराग्राफ बना लेता हूँ, ध्यान देना है आपको। मैं यहाँ फिर से एक पैराग्राफ बना लेता हूँ विद द नेम सेम कंटेंट। अब देखना है, मैंने यहाँ भी पैराग्राफ बनाया है, यहाँ भी पैराग्राफ बनाया है, बट ये वाली प्रॉपर्टीज इस पैराग्राफ को अप्लाई होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये क्लास हमने बस इसी को अप्लाई किया है, दैट्स वाई, राइट। सो गो टू योर ब्राउजर एंड यू कैन सी हमारा दूसरा पैराग्राफ नए लाइन पे ही स्टार्ट हुआ है, हमारा दूसरा पैराग्राफ नई लाइन पे स्टार्ट हुआ है बिकॉज बोथ आर द ब्लॉक एलिमेंट, दैट्स वाई, करेक्ट। मुझे क्या करना है, और एक क्लास बनाना है। सो आप और एक क्लास बना सकते हो इससे, क्लास CLS2, क्लास 2 है सपोज। फिलहाल हम नॉर्मल क्लासेस बनाएंगे, CLS2, ओपनिंग क्लोजिंग प्रॉपर्टी। मैं इसे क्या करता हूँ, कलर देता हूँ। नाउ दिस टाइम इट विल बी रेड। अब आपको देखना है, सेकेंड क्लास बनाया मैंने और वो इस पैराग्राफ को अप्लाई किया है। सेव, गो टू योर ब्राउजर एंड यू कैन सी इस पैराग्राफ का कलर क्या आया है, रेड। इसका अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है सो यू कैन डू दैट। बैकग्राउंड कलर विल बी लाइट ग्रीन। सो सेव, गो टू योर ब्राउजर एंड चेक, लाइट ग्रीन कलर आया है, राइट। सो स्टूडेंट्स, नाउ सपोज आपको फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है। मैं पहले पैराग्राफ में पहला जो क्लास है ना CLS1, इसके अंदर एक फॉन्ट की फैमिली चेंज करता हूँ, फॉन्ट फैमिली।
फॉन्ट फैमिली स्टूडेंट्स मल्टीपल होती है, सो आई यूज फ्रैंकलिन, या फिर आप और भी यूज कर सकते हो, आई यूज हियर फ्रैंकलिन, राइट, मैंने ये यूज की है। सो बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट मैंने यहाँ क्या दिया है, फॉन्ट फैमिली। सो लुक एट हियर, जब मैं फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, तो हियर वी हैव मल्टीपल वैल्यूज। फर्स्ट इज फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम, सेकेंड इज एरियल नैरो, थर्ड इज एरियल, एंड फोर्थ इज सैंस सेरिफ। तो अब इतनी सारी फॉन्ट फैमिली क्यों अप्लाई हो चुकी है, तो उसके पीछे रीजन ये है, पहले देख लेते हैं कि वो कैसे चेंज होता है कि नहीं। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई, राइट, इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, समटाइम्स हमें ये पता नहीं होता कि हमारी वेबसाइट किस ब्राउजर पे ओपन होने वाली है, राइट। हमें ये पता, जब हम हमारी वेबसाइट अपलोड करते हैं सर्वर पे, सर्वर से कोई भी एक्सेस कर सकता है टू गेट एन इन्फॉर्मेशन। तो और ब्राउजर के हमारे पास 4-5 नहीं है, इस दुनिया में मल्टीपल ब्राउजर्स है, एंड इट इज़ नॉट कंपलसरी कि हर ब्राउजर हर एक लैंग्वेज सपोर्ट करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ 4-5 लैंग्वेजेस यूज़ की है। अगर एक ब्राउजर फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम नहीं सपोर्ट करता तो मे बी वो एरियल नैरो सपोर्ट करेगा, अगर वो एरियल नैरो सपोर्ट नहीं करेगा तो एरियल या फिर सैंस सेरिफ, हाँ इसमें से कोई ना कोई तो वो सपोर्ट करेगा ही करेगा। हाँ बट अगर कोई ऐसा ब्राउजर है जो हमने जो मेंशन की है इसमें से कोई भी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता, वो ब्राउजर यूजलेस है, समझ लेना है, ठीक है। सो फॉन्ट फैमिली से वो क्या हो जाता है, फॉन्ट का स्ट्रक्चर या लुक अलग हो जाता है। वैसे आप इसे भी दे सकते हो, यहाँ भी फॉन्ट फैमिली दे सकते हो, फॉन्ट फैमिली। नाउ इस बार हम जॉर्जिया लेंगे, सेव, गो टू ब्राउजर, रिफ्रेश, राइट। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ क्या करना है आपको, अगर जो ये जो टेक्स्ट है आप देख सकते हो, ये जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन है, ये जो सभी टेक्स्ट है ना स्टूडेंट ये लेफ्ट अलाइन है। अगर आपको टेक्स्ट को राइट अलाइन करना है सो यू कैन आल्सो डू दैट। सो टेक्स्ट अलाइन ये प्रॉपर्टी है, सो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट है, आपको राइट करना है सो यू कैन डू दैट। मैंने इसे राइट किया है, पहली वाली वेबसाइट को पहले क्लास के अंदर मैंने राइट किया है, सेव। अब रिफ्रेश करता हूं, अब टेक्स्ट राइट अलाइन हो चुका है, राइट साइड अलाइन हो चुका है, राइट। सेम अगर आपको इसे सेंटर करना है सो इसी की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, सेंटर, तो वो टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो जाएगा। सेव, गो टू योर ब्राउजर, टेक्स्ट सेंटर हो चुका है, करेक्ट। बट आपको लगता है कि नहीं सर मुझे मेरा जो टेक्स्ट चाहिए वो प्रॉपरली दोनों साइड से प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हो, न्यूज़पेपर में जो कॉलम्स होते हैं वो प्रॉपरली दोनों साइड से अलाइन होते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड से, दोनों साइड से, उसे कहते हैं जस्टिफाई। आपको लगता है कि ये पैराग्राफ है ना दोनों साइड से प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए, तो आप इसे टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई भी यूज कर सकते हो। सो टेक्स्ट अलाइन एंड आई राइट हियर, लेफ्ट भी नहीं राइट भी नहीं, मैं जस्टिफाई लिखता हूँ। अब मैंने टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई सेकेंड के लिए यूज किया है, हाँ। सेव, गो टू ब्राउजर, रिफ्रेश। सो ये आप देख सकते हो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपरली यहाँ से भी अलाइन हो चुका है और यहाँ से भी। अब यहाँ बड़ा कंटेंट नहीं था इसलिए वो यहाँ तक आया है। सो ये जस्टिफाई मतलब लेफ्ट साइड से भी स्ट्रेच हो जाता है, राइट साइड से भी, और वो प्रॉपरली दिखता है। सो क्लियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द टेक्स्ट प्रॉपर्टीज? आपको टेक्स्ट अलाइन क्या है, टेक्स्ट, यस यस सर। फिलहाल हम कुछ चीज़ें कुछ सेशंस के लिए हम ऐसे ही पढ़ेंगे, बाद में हम इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि डेवलपर के लिए इंस्पेक्ट एलिमेंट इज़ अ पावरफुल टूल। ओके, अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ जो लॉरेम आईपी सम है वो पहला जस्ट वर्ड ये है कैपिटल, और बाद में जितना भी वो पूरा पूरा स्मॉल है। आपको इसका अगर यूज़ या फिर अगर आपको इसका लुक चेंज करना है सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। या फिर मैं क्या करता हूँ, एक और पैराग्राफ हम बना लेते हैं, या फिर इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, चलिए। सो अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ये प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के लिए 3 वैल्यूज है, लोअर केस, अपर केस एंड कैपिटलाइज। कैपिटलाइज, लोअर केस एंड अपर केस, ये वैल्यूज है। अगर मैं सभी के सभी अपर केस कर देता हूँ सो क्लास 1 के लिए जो पहला पैराग्राफ है वो सभी के सभी अपर केस में डिस्प्ले हो जाएंगे,
लुक एट हियर, मैं रिफ्रेश करता हूं, अब सभी का सभी टेक्स्ट पूरा का पूरा अपर केस में आ चुका है, राइट? यस, सभी का सभी जितना भी टेक्स्ट था वो अभी अपर केस में आ चुका है, राइट? देन अगर आप चाहते हो कि नहीं लोअर केस चाहिए, सो यू कैन राइट हियर लोअर केस। अगर आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर लोअर केस देते हो तो सभी की सभी टेक्स्ट लोअर केस में आ जाएगी, स्मॉल लेटर्स, राइट? सो या फिर अगर आप यहाँ कैपिटलाइज भी करते हो तो कैपिटलाइज से क्या होता है स्टूडेंट्स, हर वर्ड का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल रहेगा, हर वर्ड का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल रहेगा कैपिटलाइज से। सेव, रिफ्रेश। अब आप यहाँ देख सकते हो लॉरेम का एल कैपिटल है, आईपी सम का आई कैपिटल है, डॉलर का डी कैपिटल है, सिट का एस कैपिटल है, अमेट का ए कैपिटल है। या हर जितने भी वर्ड है सो स्टार्टिंग लेटर कैपिटल है। सो ये वैल्यूज है। सो टेक्स्ट अलाइन ये प्रॉपर्टी है, उसकी 3 वैल्यूज है, लेफ्ट राइट सेंटर एंड 4 वैल्यूज है, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की भी 3 वैल्यूज है, लोअर केस, अपर केस एंड कैपिटलाइज। ओके, नाउ अब आपको स्टूडेंट्स टेक्स्ट जैसे इसके साथ मैं करके दिखाता हूं, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, टेक्स्ट डेकोरेशंस। सो टेक्स्ट डेकोरेशन से हम क्या कर सकते हैं? सो अगर आपको क्या करना है स्टूडेंट, डैश करना है, बट वो वर्क करेगा कि नहीं चेक करता हूँ, डैश, सेव। सेकेंड के लिए मैंने अप्लाई किया है, कुछ नहीं हुआ है, ओके लेट इट बी। अब टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अगर आपको लाइन अंडरलाइन ड्रॉ करनी है, टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब हर लाइन के नीचे अंडरलाइन आना चाहिए, सो यू कैन राइट हियर अंडरलाइन। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन मैंने लिखा है सेकंड पैराग्राफ के लिए, सेकंड पैराग्राफ के लिए। नाउ गो टू ब्राउजर। सो आप देख सकते हो हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन आ चुका है, राइट? सो टेक्स्ट डेकोरेशन इज व्हाट, अंडरलाइन। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ओवरलाइन चाहिए, लाइन के ऊपर जो हमारे वर्ड्स है उसके ऊपर लाइन चाहिए, सो अंडरलाइन के बजाय आप यहाँ क्या लिख सकते हो, ओवरलाइन। तो जितने भी वर्ड्स है वो अब लाइन हमारे उसके ऊपर चले जाएंगे। अब ये नीचे है ना, मैंने ओवरलाइन लिखा है तो वो लाइन सभी लेटर्स के ऊपर चली गई, अंडरलाइन ओवरलाइन। अगर आपको लगता है कि डिलीटेड टेक्स्ट चाहिए, डिलीटेड नहीं कैसे, अगर हमारा कोई भी गलत हो जाता था हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। लाइन थ्रू अगर आप करते हो तो वो डिलीटेड टेक्स्ट की तरह शो होगा, वो डिलीटेड टेक्स्ट की तरह शो होगा। सेव, गो टू ब्राउजर, रिफ्रेश, रिफ्रेश, राइट? सो अब वो डिलीटेड टेक्स्ट की तरह आ चुका है लाइन थ्रू। सो क्लियर एवरीवन, व्हाट आर द टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टीज? Yes, sir. ओके, गुड। Yes, sir. नाउ चलिए अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाता हूँ फिर से। सो टिल दिस क्लियर एवरीवन, व्हाट आर द टॉपिक्स एंड सीएसएस प्रॉपर्टी वी सॉ? इसमें किसी को कुछ इशू है या फिर ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई? टेक्स्ट प्रॉपर्टी सभी को समझ में आई स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ सपोज मैं H1 यूज करता हूँ, H1 इज अ हेडिंग टैग, इन दिस आई एम गोइंग टू राइट माय नेम और यू कैन राइट हेमाटाइट आल्सो। सो आई राइट हियर सपोज हेमाटाइट, हेमाटाइट इन्फोटेक, हेमाटाइट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ये वर्ड मैंने यूज किया। सेव, go to your browser and refresh. So you can see everyone, here we are getting its output, Hematite Infotech Private Limited. तो चलिए हम इसे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो चलिए इसके लिए भी हम एक क्लास बनाते हैं। सो आई राइट हियर क्लास एट्रीब्यूट एंड क्लास नेम सपोज माय टाइटल। इसको मैंने क्या दिया है, क्लास नेम माय टाइटल। सो इस मैं यहाँ इसे एक्सेस करता हूँ, सो डॉट माई TITLE टाइटल, ये क्लास बनाया है, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो हेमाटाइट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है ये अब कहाँ है,
ये लेफ्ट अलाइन है, मुझे सेंटर में चाहिए, ये वर्ड जो है वो मुझे सेंटर में चाहिए। सो कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे, ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट होता है, यस, सो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सो इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है वो सेंटर में आ जाएगा क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है, राइट। रिफ्रेश, सो वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर आ चुका है, करेक्ट। अब स्टूडेंट ये पूरा का पूरा वर्ड कैसे दिख रहा है आपको, हेमेटेड इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये कैपिटलाइज में है। पहला हर सेंटेंस जो हर वर्ड है उसका पहला वर्ड कैपिटल है, मतलब ये कैपिटलाइज है। मुझे इसे पूरा का पूरा कैपिटल करना है, क्या प्रॉपर्टी है, ये पूरा का पूरा वर्ड मुझे कैपिटल बनाना है, पूरा का पूरा क्या प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, करेक्ट। अभी हमने पढ़ा है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो H1 के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो पूरा का पूरा अपर केस में हो जाएगा, राइट। अपर केस में ये आ रहा है, मुझे इसको कलर देना है स्टूडेंट, मुझे इसे कलर देना है। सो मैं नया कलर देता हूं। सो टेक्स्ट को कलर देना है तो क्या प्रॉपर्टी है, कलर, कौन सा देंगे हम, सो डॉजर ब्लू, कैसे लगेगा डॉजर ब्लू, ठीक है मैं डॉजर ब्लू देख के देखता हूँ। सेव, गो टू योर ब्राउजर, रिफ्रेश, ये डॉजर ब्लू से बेटर मैं रेड दे देता हूँ, रेड अच्छा लगेगा, थोड़ा हाईलाइटेड है। तो नया कलर है स्टूडेंट, मैं इसे रेड दे देता हूँ, रेड, डार्क रेड, राइट। सेव, ये रेड में आया है। अब स्टूडेंट ये तो अभी तक हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, अब मैं आपको एक एडवांस प्रॉपर्टी पढ़ाता हूँ, एडवांस टेक्स्ट शैडो नाम की, टेक्स्ट शैडो नाम की मैं आपको प्रॉपर्टी पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स, जो एडवांस प्रॉपर्टी है। तो चलिए हम इसे शैडो अप्लाई करेंगे। तो क्या करना है, मुझे टेक्स्ट शैडो नाम की एक प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट हाइफन शैडो, ओके, टेक्स्ट हाइफन शैडो। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम 4 वैल्यूज लिखते हैं, 4 वैल्यूज पास करते हैं। सो पहला होता है 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, दूसरा अगेन 0 पिक्सल, तीसरा होता है अगेन 0 पिक्सल, और बैकग्राउंड में शैडो का कलर क्या होता है, ब्लैक। तो मैं यहाँ ब्लैक लिखता हूँ, वैसे आप कोई भी कलर लिख सकते हो, ओके। सो जस्ट वेट अ मिनट, okay, so sorry for, so students, am I audible to you, hello, Yes, हेलो sir. सर, ओके। तो टेक्स्ट शैडो ये प्रॉपर्टी है। सो यहाँ हम 4 वैल्यूज पास करते हैं। पहली जो होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल शैडो, हॉरिजॉन्टल मतलब कैसे वो बढ़ेगी, लुक एट हियर, आप यहाँ पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकते हो, नेगेटिव वैल्यू भी। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ हमारे इंस्पेक्ट एलिमेंट के साथ, वो प्रॉपरली दिखेगा आपको। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ, सो आपको बेटर लुक दिखेगा वो, राइट। मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन किया स्टूडेंट्स, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, राइट। सो आप देख सकते हो मैं इसे माय टाइटल को मैंने सिलेक्ट किया है। सो जैसे आपको विजिबल है ये, राइट। मैंने इसे सिलेक्ट किया है स्टूडेंट, फिलहाल आप बस ध्यान दो, मैंने इसे सिलेक्ट किया, आप यहाँ से देख सकते हो। सो हम यहाँ अप्लाई करेंगे टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट
हाइफन शैडो, राइट। सो हम इसमें 3-4 वैल्यूज पास करते हैं, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल एंड ब्लैक कलर। वैसे आप कोई भी कलर दे सकते हो, मैं ब्लैक देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहली जो वैल्यू होती है, अगर आप इसे माइनस, पहली जो वैल्यू होती है पहली वाली, वो होती है हॉरिजॉन्टल शैडो। अगर आप नेगेटिव वैल्यू देते हो ना, तो वो लेफ्ट साइड से रखेगी, राइट, लेफ्ट साइड शैडो से रख रही है। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू देते हो तो वो राइट साइड से रखेगी शैडो, करेक्ट। दिखाई दे रहा है आपको, राइट साइड वो सरकती है, राइट। Yes, sir. हेलो एवरीवन, Yes, sir. रिमेनिंग समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके। दूसरी जो वैल्यू होती है वो टॉप एंड बॉटम होता है। तो अगर आप नेगेटिव वैल्यू देते हो तो वो ऊपर सरकेगी, अगर पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो वो बॉटम में सरकेगी शैडो, ठीक है। देन तीसरी वैल्यू होती है, जो शैडो है ना, वो ब्लरिंग के लिए यूज होता है। सो मैं तीसरी वैल्यू देता हूँ, धीरे धीरे बढ़ानी है। सो वो ब्लरिंग आ रहा है, शैडो ब्लर में हो रही है, राइट, करेक्ट, शैडो ब्लरिंग में आ रही है। सो इस तरीके से आप वो वैल्यूज दे सकते हो, बढ़ा सकते हो, क्लियर। पहली वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टल शैडो, दूसरी होती है वर्टिकल, तीसरी होती है ब्लरिंग, जो ब्लैक में दिया है। अब मैंने ब्लैक कलर दिया इसलिए शैडो ब्लैक आ रही है, अगर आपको अलग कलर देना है तो अलग भी दे सकते हो। चलो मैं दिखा देता हूँ, सपोज मैं यहाँ देता हूँ ब्लू, तो शैडो जो है वो ब्लू में आ जाएगा, राइट, शैडो जो है वो ब्लू में आ जाएगा। सो आप अपने हिसाब से जो कलर देना चाहते हो वो दे सकते हो, ठीक है। सो कॉपी दिस प्रॉपर्टीज and I paste here also, या वो पेस्ट कर देता हूँ टाइटल के अंदर, ओके। सेव इट, गो टू योर ब्राउजर एंड रिफ्रेश इट। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हम वो शैडो अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से हम वो शैडो अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। टेक्स्ट को शैडो कैसे आ रही है, Yes, sir. राइट। सो स्टूडेंट, Yes, ऐसे ही sir. हमारे पास मल्टीपल टेक्स्ट के लिए, अगर आपको टेक्स्ट को बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज भी है, राइट। सो हियर वी हैव मल्टीपल, क्या कहते हैं हम इसे, प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट। सो क्लियर टिल दिस, टेक्स्ट के लिए प्रॉपर्टीज है, ओके। नाउ सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव मल्टीपल वैल्यूज फॉर योर थिंग्स आल्सो, राइट। अगर आपको स्टूडेंट अभी बैकग्राउंड के लिए प्रॉपर्टी यूज करनी है, सो आप बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ, अगर आपको किसी भी एलिमेंट को बॉर्डर देनी है तो आप बॉर्डर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी सम बॉर्डर प्रॉपर्टीज। हमने यहाँ अभी कौन से टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज देखी है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हमने देखा है टेक्स्ट कलर, सॉरी कलर प्रॉपर्टी देखी है, जो आपको अगर टेक्स्ट को कलर देना है तो वो यूज होती है, करेक्ट, कलर। देन हमने ये देखा है टेक्स्ट शैडो अभी देखी है, शैडो। देन हमने टेक्स्ट अलाइन देखा है, टेक्स्ट हाइफन अलाइन। आफ्टर दैट वी सॉ टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन। then here we saw text decoration, text transform, right. So these are the properties, text shadow, text line, text decoration, text transform। और भी क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है स्टूडेंट्स, यहाँ कलर, अलाइन, शैडो, फॉन्ट फैमिली भी देखी है, करेक्ट। फॉन्ट फैमिली, अगर आपको फॉन्ट की फैमिली चेंज करनी, सो हियर वी सॉ फॉन्ट हाइफन फैमिली, राइट। तो ये ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज है। अब हम देखेंगे बॉर्डर प्रॉपर्टीज, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हियर कवर बॉर्डर प्रॉपर्टीज, बॉर्डर प्रॉपर्टी।
सो बॉर्डर क्या होता है स्टूडेंट? सो आपको अगर किसी भी टेक्स्ट को बॉर्डर अप्लाई करनी है तो हम वो कर सकते हैं. सो लेट्स सी, मैं यहाँ एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट्स विद द नेम border.html. ओके, मैंने एक border.html ये फाइल बनाई है. एक HTML स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं यहाँ, राइट. सो हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ एक h2 एलिमेंट यूज करता हूँ एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट गुड मॉर्निंग, या फिर जो कुछ भी लिख सकते हो आप ऐसे. सो आई राइट हियर गुड मॉर्निंग, सेव. सो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, इसे कॉपी पाथ करता हूँ, देन गो टू योर ब्राउजर एंड रिफ्रेश इट. अब मुझे क्या करना है, इसे CSS यूज करना है स्टूडेंट, मुझे इसे CSS अप्लाई करना है. तो स्टूडेंट CSS हर बार हम कैसे करते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ फिर इसे क्लास अप्लाई करते हैं, करेक्ट, देन प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करते हैं. तो हर बार स्विचिंग करना इट इज नॉट आइडिया. हर बार हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, सेव करते हैं, देन चेक करते हैं, अगेन प्रॉपर्टीज लिखते हैं, सेव करते हैं, देन चेक करते हैं. तो इससे हमारा टाइम भी जाता है और हमें प्रॉपरली विजिबल नहीं होता, राइट, प्रॉपरली हमें दिखता भी नहीं है. तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू CSS अप्लाई करेंगे. तो इंस्पेक्ट एलिमेंट हम कैसे ओपन कर सकते हैं स्टूडेंट, पहले तो आपको HTML फाइल बना लेनी है, उसे सेव कर देना है, ठीक है, HTML फाइल बना लेनी है, उसे सेव कर देना है. सो आप देख सकते हो यहाँ मैंने इसे border.html फाइल बनाई है, इसके अंदर h2 एलिमेंट लिया है और वो एग्जीक्यूट किया है, ब्राउजर पे रिफ्रेश किया है, हमें आउटपुट मिल रहा है. मैं क्या करता हूँ, अभी इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ. सो राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट. जब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट बनाते हो तो यहाँ आप देख सकते हो एलिमेंट या ऑप्शन होना चाहिए. सो यहाँ दिख रहा है आपको ये वाला सिलेक्टर, इसे क्लिक करो. जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ब्लू हो जाएगा. ब्लू हो जाने के बाद यहाँ जाना है, तो इसके ऊपर होवर करो, इसका H2 एलिमेंट का नाम दिखता है एंड क्लिक कर दो. मैंने इसे क्लिक कर दिया है, तो आप देख सकते हो मैंने जैसे क्लिक किया यहाँ वो दिखाता है कि आपने H2 सिलेक्ट किया है. तो यहाँ भी दिखाता है वो HTML के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर H2. आपको इसके साथ कुछ भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी तो एलिमेंट डॉट स्टाइल है ना, एलिमेंट डॉट स्टाइल, इसी के अंदर हम चेक कर सकते हैं, टेम्पररी होता है ये. मुझे क्या करना है, इसे कलर देना है सपोज. सो कलर एंड रेड आ चुका है. अगर जैसे आप रिफ्रेश कर दो वो चला जाता है, वो टेम्पररी होता है, राइट, रिफ्रेश करने से. सो लुक एट हियर, मैं इसे देता हूँ कलर. सो इसी को कलर होगा, रेड आया है, हमें दिखाई भी देता है. एंटर की प्रेस कर दो. अब मुझे H2 को बॉर्डर देना है, तो हम क्या देंगे, बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी है यहाँ, बॉर्डर हाइफन स्टाइल. बॉर्डर हाइफन स्टाइल मैंने ये प्रॉपर्टी दी है. अब इसके लिए हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज है. अगर मैं यहाँ डैश देता हूँ, लुक एट हियर, मैंने डैश, तो ये एलिमेंट क्या है, डैश दिखाई दे रहा है. ये ब्लॉक एलिमेंट है और ये H2 क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है और ये फुल विड्थ लेता है, इसलिए इसकी बॉर्डर डैश आ चुकी है. आपको लगता है मुझे डैश नहीं चाहिए, यू कैन सी डॉटेड, डॉटेड दे सकते हो वैल्यू, राइट, डॉटेड, तो डॉटेड आ जाती है. यू कैन गिव डाउन एरो की प्रेस करो, डबल, ग्रूव, हिडन, इनहेरिट मतलब पैरेंट से वो ये करेगा, इनसेट, नन, आउटसेट, रिवर्ट, रिजिट, सॉलिड, आप इसे कोई भी दे सकते हो, राइट. इतनी वैल्यूज है, डैश, डॉटेड, डबल, ग्रूव, इनसाइड, इनसेट, आउटसेट, रिवर्ट, रिजिट, सॉलिड. मैं सॉलिड यूज करता हूं. अब स्टूडेंट हमारे बॉर्डर का कलर क्या आ रहा है, रेड आ रहा है, तो मुझे कलर चेंज करना है. सो आई कैन राइट हियर कलर. सो कलर से तो टेक्स्ट का आता है, सो आई राइट हियर बॉर्डर कलर, बॉर्डर हाइफन कलर. सो मैं इसे देता हूं ब्लू. आप देख सकते हो, करेक्ट, हमारे बॉर्डर का कलर ब्लू आया है. और ये हमें जब कि तभी दिखता है, लाइव दिखता है कि अरे आप क्या चेंजेस कर रहे हो. ये इंस्पेक्ट एलिमेंट का पावर है. अब इसकी थिकनेस बढ़ानी है आपको, बॉर्डर की थिकनेस. सो हियर वी हैव बॉर्डर साइज, बॉर्डर हाइफन साइज.
बॉर्डर विड्थ, सॉरी बॉर्डर विड्थ ये प्रॉपर्टी है। बॉर्डर विड्थ से क्या होता है, उसकी थिकनेस बढ़ती है। मैं देता हूँ यहाँ 2 पिक्सल, कम हो गई, अब मैं बढ़ाता हूँ 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, 5, 6, 7, 8, 9, तो बॉर्डर की थिकनेस बढ़ते जा रही है, करेक्ट। सो बॉर्डर की थिकनेस बढ़ती है। आप 10 दे दो तो बॉर्डर की थिकनेस बढ़ी है। सो क्लियर, बॉर्डर स्टाइल से सॉलिड आप कोई भी दे सकते हो, कलर भी कोई दे सकते हो, विड्थ। तो एलिमेंट को हम बॉर्डर कैसे देते हैं, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्टूडेंट, या हमने 3 लाइन यूज किए, आप सिंगल लाइन में भी इसे दे सकते हो। सो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, इसे भी कमेंट कर देता हूँ, इसे भी। आप ऐसे भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो या फिर इसे शॉर्ट हैंड भी अप्लाई कर सकते हो। ये तीनों वैल्यू एक साथ अप्लाई कर सकते हो। सो बस आपको क्या लिखना है, बॉर्डर। सो मैं ये देता हूँ 10 पिक्सल, तो ये थिकनेस हो जाएगी। स्टाइल देना है सॉलिड, तो आ गया सॉलिड। कौन सा कलर देना है, ब्लू। सो आप ऐसे दे सकते हो। सो बॉर्डर दे दो, पहले होता है उसकी कलर, इसका ऑर्डर कैसे भी दे सकते हो। सो 10 पिक्सल क्या है, राइट, इसकी थिकनेस, सॉलिड इसका स्टाइल है, ब्लू इसका कलर है। तो इसे कहते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। अलग अलग अप्लाई करने से बेटर है आप एक साथ भी कर सकते हो। सो आई कॉपी ऑल दिस, ये टेम्परेरी होता है स्टूडेंट, इसलिए हमें इसे कॉपी करना है। मैंने सिलेक्ट करके कंट्रोल-C प्रेस करता हूँ, कंट्रोल-C। अगर आप मैंने कॉपी तो कर लिया, अगर आप गलती से ये रिफ्रेश कर दो वो चला जाता है, इसलिए कॉपी कर लेना है। मैं यहाँ और एक क्लास बनाता हूँ। सो पहले स्टाइल डॉट माय हेडिंग नाम का एक क्लास बनाता हूँ, इसके अंदर ये पेस्ट कर देता हूँ प्रॉपर्टीज, अल्टर-Shift-F, राइट। और ये माय हेडिंग है, इसे अप्लाई करेंगे। सो क्लास माय हेडिंग, अब वो परमानेंटली अप्लाई हो जाएगा। अल्टर-Shift-F, गो टू योर ब्राउजर, रिफ्रेश, यस। सो किसी भी एलिमेंट को हम बॉर्डर कैसे देते हैं, क्लियर। सो आप ऐसे भी दे सकते हो, और ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, इट कॉल्ड एज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। Save, go to your browser, refresh. So clear everyone? Okay, so for today we stop here everyone. Okay, so good, for today we stop here. You have to practice it. We will continue from the tomorrow. Swapnil, both the Swapnil, Siddesh and Dheeraj is also there, Nikhil also there. Okay, so Hello, take sir. care everyone, bye bye. Yes, सर ते ऑन टेन टाकायला लावलं तर टीडी मध्ये टाकायचं का? हॅलो, काय, हाँ ते नाही का मी टेबलचा फोटो पाठवला होता तर त्याची साईज ते ऑन टेन करेक्ट करेक्ट, 3D मध्ये कंटेंट तो कंटेंट, कंटेंट आहे का? कंटेंट ना, हा ते तुम्ही ऑन टेन कंटेंट आहे तो, पाठवलं. ऑनटेंट नाही तो कंटेंट. ते ओके चुकीने थोडं झालं असेल, ते कंटेंट आहे, टीडीच्या आत असली तो कंटेंट. ठीक आहे, ओके ओके ओके. ओके, बाय बाय.